إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحه وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون أمارة ورحمة ثم يتقادمون عليه تقادم الهمر فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم الأسكلان أو كما قال عليه الصلاة والسلام تاریک شب میں سحر پیدا کر تاریک شب میں سحر پیدا کر جو اسلام کے کام آئے وہ سر پیدا کر کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج کی مختصر اس خطبہ جمعہ کی گفتگو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام نعت کے وحی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو پڑھیں اور سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے ہمیں بہت ساری رہنمائی بھی ملے گی۔ اس وقت جو ملک پاکستان افراط و تفرید کا شکار ہے، اس وقت جو بے چینیاں پائی جا رہی ہیں، اس وقت حزب اختلاف اور برسر اقتدار آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہے، اس وقت جو مہنگائیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب ہم پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا مواخذہ ہو جائے گا، ہمیں ڈسیژن مل جائے گا کہ ہم کس طرح اس دور میں باوقار زندگی کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح اسلام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان معجم الکبیر طبرانی میں ہے۔ کائنات کے امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 دور دیکھے گی، 4 ادوار کے بعد دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ان میں سے پہلا دور امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ھذا الامر نبوت و رحمہ، اسلام کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہے۔ جب تک میرا رب چاہے گا یہ نبوت اور رحمت باقی رہے گی۔ آواز زیادہ تو نہیں اندر پتر اندر سمجھ آنی چاہیے، آپ کہڑے کوئی پیسے والے مولوی اول ھذا الامر نبوت و رحمہ۔ اے یار کو ختم کر دے۔ سب سے جو پہلا دور ہے وہ ہے نبوت اور رحمت کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کائنات کے امام محمد کریم نے فرما دیا کہ آج کے دن میرے رب نے اس عظیم نعمت اسلام کو مکمل کر دیا۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال مکہ کے اور 10 مدینہ کے۔ جس طرح میرے رب نے مجھے کہا نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، لین دین میں، معاملات میں، خوشی اور غمی میں، معاشرتی زندگی میں، سول لائف میں، سوشل لائف میں، خارجہ داخلہ پالیسیوں میں، جس طرح میرا رب مجھے کہتا گیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کرتا گیا، اور جو میں نے کر کے دنیا کو دکھا دیا اس کو میرے رب نے اسلام بنا دیا۔ اول ھذا الامر نبوت و رحمہ، یہ دور اسلام کا ہے، یہ نبوت اور رحمت کا ہے۔ لوگ آئیں گے اس دور میں زندگی گزاریں گے، اپنے اپنے حصے کے دیے جلائیں گے، کچھ میر جعفر الصادق کا کردار پائیں گے، یہ تو نصیبے کی بات ہوگی۔ لیکن جیسے ہی یہ نبوت اور رحمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچے گا تو کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا دور دنیا دیکھنا شروع کرے گی۔ ثم یکون خلافت و رحمہ، خلافت اور رحمت شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑا لمبا دور چلے گا، لوگ آئیں گے اس کے اندر زندگیاں گزاریں گے، پھر اپنے اپنے حصے کے دیے جلائیں گے۔ کوئی باوقار زندگی گزارے گا، کوئی بد کردار زندگی گزارے گا۔ جس طرح سے بھی ممکن ہوا ہر کوئی اپنے اپنے کام کرے گا۔ خلافت اور رحمت یہ بڑا عظیم دور ہوگا، بڑا لمبا دور چلے گا۔ پھر خلافت و رحمت کا دور 30 سال خلافت راشدہ، 90 سال خلافت بنو امیہ، 563 سال خلافت عباسیہ، 523 سال خلافت عثمانیہ۔ یہ ہے خلافت و رحمت کا دور۔
सुम्मा यकूनु खिलाफतुम व रहमा। खिलाफत और रहमत ये भी बड़ा लंबा दौर है। जब ये दौर की किताब बंद होगी, दुनिया तीसरा दौर देखेगी। सुम्मा यकूनु मुल्कुम व रहमा, मलूकियत और रहमत, बादशाह तो रहमत, ये भी अजीम दौर है, ये भी रहमतों से भरा दौर है। ये बादशाह तो रहमत, ये मलूकियत तो रहमत, ये तीसरा दौर, इसको दुनिया देखेगी। बहुत सारी दुनिया जिंदगियां खपाएगी, इस सफर से अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। सुम्मा यकून मुल्कुम व रहमा, एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा, वक्त अपनी तरतीब के साथ चलता जाएगा, ये दौर की किताब भी बंद हो जाएगी, फिर दुनिया चौथा दौर देखेगी। सुम्मा यकूनु अमारतुम व रहमा, फिर अमारत तो रहमत का दौर चलेगा। अमीर के साए के नीचे लोग बहुत बड़ा दीन का काम करेंगे। अमारत तो रहमत, ये भी अजीम दौर है। अब खिलाफत तो रहमत, नबूवत तो रहमत का दौर गुजरा पहला, फिर खिलाफत तो रहमत दूसरा, फिर मुलूकियत तो रहमत तीसरा, ये गुजर गए। पाक पतन के गैरतमंदों, जिस दौर में मैं और आप मौजूद हैं, ये दौर है अमारत और रहमत का, ये चौथा दौर है। ये अमारत और रहमत का दौर, ये भी फरमाया रहमतों से भरा दौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमारत और रहमत का दौर दुनिया देखेगी तो मेरी उम्मत में एक अजीम फितना रूनुमा होगा, बहुत खा जाने वाला फितना, चूल्हों को हिला देने वाला फितना। मेरी उम्मत के अंदर बड़ा अजीम फितना सर उठाएगा। सहाबानी मजमईन ने गुजारिश की, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी रहनुमाई तो फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, उस दौर में लोग हुकूमतें हासिल करने के लिए आपस में इस तरह लड़ेंगे जैसे गधे लड़ते हैं। ये किसका फरमान है? कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद करीम। मैं नबी के मिंबर पर खड़ा हूं और अपनी बात को अल्लाह के नबी तक पहुंचाने का पाबंद भी हूं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये किसी की और की बात नहीं है, किसी मुफस्सर की बात नहीं है। ये कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि जब अमारत और रहमत का दौर होगा तो दुनिया गधों की तरह, सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, लड़ाइयां बहुत होती हैं, सलीके होते हैं, तरीके होते हैं, वजाहतें होती हैं, खानदान होते हैं, बराबरियां होती हैं, लेकिन ये लड़ाइयां ये गधों की तरह होंगी, इंसानों की तरह नहीं होंगी। इंसान लड़ते हैं तरतीब के साथ, लेकिन ये गधे की लड़ाई कुर्सी के हसूल के लिए, हुकूमतों के लिए, इज्जत का, हुर्मत का, बेटी का, मां का कोई पास नहीं होगा। जैसे गधा मालिक को काटता है, ऐसे लोग एक दूसरे को काटेंगे लड़ाई में, और गधे की तरह कोई पहचान नहीं छोड़ेंगे। सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, मादरत के साथ आज भी हिज़्बे इख्तिलाफ हो या बरसरे इक़्तिदार हो, क्या उन्वान चल रहा है? हिज़्बे इख्तिलाफ की लड़ाई का मकसद भी कुर्सी और हुकूमत है, और बरसरे इक़्तिदार का भी हुसूल कुर्सी और हुकूमत है, और इस जबरदस्त किस्म की लड़ाई है, और गधे की तरह उलझ रहे हैं। मकसद किसी के पास नहीं है, न दाखिला पुलिसी में, न खारजा पुलिसी ने, न अखलाकियात में, न मुआमलात में, न मुआशियात में, न मुआशरती जिंदगी में, सिर्फ लड़ाई है। सुम्मा यतकादमूना अलैहि तकादुमल हुमर, हुमर की तरह लोग लड़ेंगे, गधों की तरह लोग लड़ेंगे, हुकूमतों के लिए, कुर्सियों के लिए। सहाबी खड़ा हो गया, कहता अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें यह नसीहत कीजिए कि जब लोग हुकूमतों के लिए लड़ें गधों की तरह, तो हम क्या करें?
ہم امت کیا کریں؟ ہم امت کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے جو گدوں کی طرح لڑیں گے حکومتوں کے لیے اللہ کے نبی کی امت میں، ان کا باب الگ ہے، لیکن پھر فرما دیا کہ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا فعلیکم بالجہاد، پس تم نے جہاد کرنا ہے، تم نے فعلیکم بالجہاد۔ جب لوگ گدوں کی طرح حکومتوں کے لیے لڑیں، فعلیکم بالجہاد، بس تم نے جہاد کرنے۔ کہاں کرو گے جہاد؟ وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ، اس دور میں سب سے افضل جہاد اسلامی ملکوں کی پہرے داری ہوگی، اسلامی ملکوں کی پہرے داری۔ پہرے داری داخلہ پولیسی میں ہوتی ہے یا خارجہ میں؟ ہاں، پہرا گھر کے اندر ہوتا ہے یا گھر کے باہر؟ ہاں، باہر۔ گھر کے اندر پہرا نہیں ہوتا۔ آپ بیٹی پر، بہو پر، ماں پر، بہن پر پہرا نہیں لگا سکتے۔ اگر لگائیں گے آپ سوشل لائف کا کھانا خراب کریں گے، آپ شرادہ بکھیر بیٹھیں گے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی سوشل لائف کا ستیہ ناش کر بیٹھیں گے، گھر کے امور نہیں چلا سکیں گے۔ کس پر شک کرو گے؟ کس پر پہرا لگاؤ گے؟ داخلہ پولیسی میں پہرا نہیں ہوتا، خارجہ پولیسی میں پہرا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج پارٹیوں نے بھی یہ سمجھایا، آج ساری کی ساری جماعتوں نے یہ سبق دیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں پہرا کہاں ہوتا ہے۔ اندر لڑ رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، لیکن کائنات کے امام قربان جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ، یہ سب سے افضل جہاد ہے اسلامی ملکوں کی پہرے داری خارجہ پولیسی میں۔ حکمران مختلف معاہدوں میں جکڑا ہوتا ہے، اس کے ریزولوشن چلتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں۔ تم نے کسی ویک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے داخلہ پولیسی کا ستیہ ناش نہیں کرنا، ملک کے اندر گھراؤ نہیں کرنا، اس کے حکمران کے خلاف تکفیر لانچ نہیں کرنی، آپ مسلح جدوجہد لانچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسلام نے درس دیے کہ آپ موجودہ حکمران جو کلمہ گو حکمران ہوتا ہے، جتنا بے دین کیوں نہ ہو جائے، اس کو آپ گالی نہیں نکال سکتے، اس کے لیے آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ گو حکمران کو گالی نکالتا، اللہ اس کی دعائی قبول نہیں کرتا۔ آج میں نے گفتگو کی، ایک بڑی جماعت کا سربراہ مجھے کہتا بات تو آپ کی بڑی اچھی تھی، لیکن میں ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیجئے۔ کہتا جی سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں۔ کہتا میں نے پڑھا ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے۔ فرمایا کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ میں نے کہا میرا سوال ہے، جابر حکمران کو جو کلمہ حق کہنا ہے، اس کے اندر ڈنڈا ہے، تلوار ہے، گالی ہے، بد دعا ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے؟ میں نے کہا کلمہ حق کہنا ہے دلیل کی قوت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں۔ منافق کو برداشت کیا اللہ کے نبی نے، پہلی صف کا نمازی ہے، اسی منبر کو صاف کرتا ہے۔ آپ امام مالک کو پڑھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، ابن تیمیہ کو پڑھیں، ساری چیزیں کھل کے آئیں گی۔ آج مختصر سی حدیثیں سنا کے، تقریریں کر کے، آپس کی لڑائیوں میں
मुब्तला कर रहे हैं लोग। और भाई आपसी लड़ाइयां कभी भी जायज नहीं है। मुसलमान की तरफ तो खाली हथियार करना भी जायज नहीं है। अपनी सारी गोलियों का रुख किसी और तरफ करें जो काफिर की तरफ जाती हैं, अपनी तरफ नहीं। एक हमारे बहुत बड़े मुर्रख हैं प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन हैकल, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम कायनात मोहम्मद करीम से लेके शाह इस्माइल शहीद तक 6 अदवार है, अभी जिंदा है ये मोहम्मद हुसैन हैकल, तो प्रोफेसर है। 6 अदवार ऐसे थे कि जिनके अंदर यूं महसूस होता था कि अब इस्लाम के नाम लेवा दुनिया में बाकी नहीं रहेंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। हर तरफ तारीकी है, अंधेरी रात है, कोई रोशनी की किरण बाकी नहीं है। लेकिन उन 6 अदवार में अल्लाह ने अपनी रोशनी की चमक इस्लाम को जिंदा रखा, अपने नाम को जिंदा रखा। मैं उसमें से एक दौर पेश करता हूं, वक्त नहीं है। ये दौर है मामून रशीद का, बात आपको समझ आएगी। मामून रशीद हुकूमत नहीं है, हुकूमत नहीं है, ही अब्बासी खलीफा है। और आखिरी दौर में आकर आइन पास करने लगा, जिस तरह हमारी हुकूमत अब ने अभी आइन पास 26वीं आइनी तरमीम पास की है, इसी तरह आइन पास होने लगा। इसलिए वो जो आइन पास करने लगा ना मामून रशीद, वो था कुरान के मुतसादम, हदीस के मुतसादम। खुद के अंदर गफलत थी, खुद बेअमली का शिकार हो गया बहुत सारी चीजों में, और वो अपनी बदअमाली और बेअमली को आइन के जरिए पास करवा के निकलना चाहता था बंद गली से। लेकिन उसने कहा अगर ये आइन पास करता हूं तो सबसे पहला जो रुकावट मेरे सामने खड़ी है वो अल्लाह का किताब कुरान मजीद है। वो बहुत सारी बातें हैं, अभी वक्त नहीं है, कौन कौन सी चीजें वो पास करवाने लगा। फिर अल्लाह के नबी का फरमान है, इसी कश्मकश में था, रातों रात एक मौलवियों का जत्था आ गया, दरबारी मुल्ला, मोतज़िला और जहमिया बड़ी तादाद में मामून रशीद के महल के सामने पहुंचे। जी हम खलीफा साहब से मिलना चाहते हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये खिलाफत है। मिलवा दिया। उन्होंने कहा जी हम सुन रहे हैं कि आप एक आइन पास करना चाहते हैं। हमारी एक बहन है, उसने किताब, प्रोफेसर नाइमा सोहेब कराची से है, उसने भी इसको तबकात इब्न साद में भी, तारीख़ दावत व अज़ीमत में भी ये वाक़या भी तफसील मिलेगा। तो उसमें हम सुन रहे हैं कि आप एक आइन पास करना चाहते हैं, लेकिन बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। कहा कि यार खिलाफत है, खिलाफत वो जमीन पे ऐसी नेमत होती है कि कोई भी फैसला कुरान और हदीस के मुतसादम कबूल नहीं करती फील्ड, कोई फैसला किया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा जी आप परेशान क्यों होते हैं, हम साबित करते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है। हम साबित करते हैं ये कुरान अल्लाह का नऊज़ बिल्लाह कलाम ही नहीं है। जब ये अल्लाह का कलाम ही नहीं है तो आप जौन से मर्जी आइन को पास कराएं, आपको तो पकड़ नहीं आएगी। ये छोटी बात है कि कुरान को हुक्मरान के सामने खड़े होकर कहना कि ये हम साबित करेंगे ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। फिर उन्होंने साबित कर दिया। सुबह सवेरे मामून रशीद ने ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, ये कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है, ये मखलूक है, और मखलूक की नाफरमानी जायज़ है, तरमीम हो सकती है। मैं तो अल्लाह के फरमान की नाफरमानी कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं। पहला हुक्मरान, अगले लम्हे दारुल कज़ा के चीफ जज, सारी अदालतें कह रही हैं कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है। फिर सारे जत्थे मौलवियों के वो भी कह रहे हैं कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है। इन पूरी मुमलकत में से 4 लोग खड़े हुए,
मौलाना कवारीरी, मौलाना सजादा, मौलाना मोहम्मद बिन नू, मौलाना इमाम अहमद बिन हंबल, पूरी मुमलकत, पूरा मुल्क, पूरी खिलाफत। उन्होंने कहा नहीं मामून रशीद, अल कुरान कलामुल्लाह, ये कुरान हमारे रब का कलाम है, गैर मखलूकिन, इसको आप कभी भी मखलूक साबित नहीं कर सकते, हम आपके सामने आएंगे, करो मुनाजरा। मामून रशीद ने कहा इनको जकड़ो बेड़ियों में और भारी सजाएं दो, इनको मेरे दरबार में पेश करो, इनको अभी समझ आ जाएगी कि ये अल्लाह का कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है या मखलूक है। जब इनको बेड़ियों में जकड़ा जाने लगा, अज़ियतें दर अज़ियतें देने लग गए, तो मौलाना कवारीरी और सजादा भी कहते हैं हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो सरकार का मौक़िफ़ है। इस्तकामत दीन पर कौन देता है? अल्लाह। इस्तकामत आसमानों से आती है भाई, हिल्म आसमानों पर है। बंदा जितना पढ़ा लिखा हो, जितना बड़ा हो, इस्तकामत बातों से नहीं आती, इस्तकामत इखलास पर आती है। जो भी अमल करो अपने रब को राजी करो, फिर आसमानों से मदद आती है। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, इन्होंने कहा जकड़ो, दो फिर गए मौक़िफ़ से, अब दो बच गए। जिन्होंने कहा कि कुरान रब का कलाम है, बेड़ियों जंजीरों में जकड़ा चला रहे हैं। थोड़ी देर चले, तबरी ने लिखा इमाम मोहम्मद बिन नूह की उम्र 90 से ऊपर थी, शेखुल हदीस व तफसीर, शेखुल कुरान थे, मौजूदा दौर के मुहद्दिस थे। इमाम अहमद बिन हंबल जवान थे, खड़ा किया, बेड़ियां भारी थी, गिर गए। थोड़ा और चले, फिर गिर गए। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के अलावा तेरे ही तो सहारा रह गया, कहीं छोड़ के ना चले जाना। फिर जवान थे, खड़ा किया और कंधा भी दिया कि चलो मेरे सहारे, कंधे के सहारे चलो। यकदम तीसरी मर्तबा गिरे, इमाम अहमद बिन हंबल ने चेहरा सीधा किया तो रूह कब्ज़ से नस्ल से प्रवास कर गए। उसी तरह बेड़ियों में जकड़े, खाल के हकीकी से जा मिले। अब बंदे कितने रह गए? एक। पूरी मुमलकत दरबार के सामने गए, पता चला मामून रशीद फौत हो गया है। मोतसम बिल्लाह ने खिलाफत की भागदौड़ संभाली। पहला हुक्म दिया कि उस मौलवी को लाओ जो कहता है कुरान रब का कलाम है। इनको पेश किया गया। सारे हवारी, दरबारी, सारे मौलवी, दारुल क़ज़ा के चीफ जज सारे जमा हैं, एक तरफ बैठे हुए हैं, इधर एक अल्लाह का बंदा खड़ा है। सुबह से मुनाजरा शुरू हुआ, शाम का सूरज ढलने लगा, सारी हुकूमती पार्टी शिकस्त खा गई। एक अल्लाह का बंदा भारी है सब पर। मोतसम को पता चला कि मामला तो खराब हो गया। वो जल्दी जल्दी उतरा, इमाम साहब के कान में कहा, ए इमाम साहब, जितना बेटे से प्यार करता हूँ आपसे भी करता हूँ। जब सारी मुमलकत मान रही है कि कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है, तो आप फर्द वाहिद भी तो मान जाओ। कहा नहीं। मोतसम खड़े होकर ऐलान कर दिया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, ये कुरान हमारे रब का कलाम है, मखलूक नहीं है। और फिर फरमाया, ए मोतसम, लैसा कमिस्लिही शैइन व हुवा समीउल बसीर, इस जैसी मिसल पेश तो कर। ये मेरे अलीम बिज़ाति सदूर का दस्तूर है, ये कानून है, ये ज़ाविया है, ये खारजा पुलिसी है, ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया इसको पढ़ के अचर जाती है दीवारों आसमानों पर, और इसी को गिरा के गिर जाती है। मैं कैसे मानूंगा कि कुरान मखलूक है? नहीं, ये मेरे रब का कलाम है। नहीं मानता, कहता नहीं मानता। कहा उल्टे लटाओ, कोड़े मारो। लटाया गया, 19 कोड़े पहले लगे। पहला कोड़ा जब पुष्प पर लगा, तबरी ने लिखा कि जोर से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये मुमलकतें, ये बादशाहतें, ये चंद दौर के किस्से और कहानियां, ये इधर ही रह जाएंगी। तू सबसे बड़ा है। अहले पाक पतन अल्लाह हमें सबको समझ दे दे कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। मुस्नद अहमद में रवायत है,
कितना बड़ा है। 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया है। कितने? 8। दाएं कंधे पर, कंधा तब्दील नहीं करेंगे, क़यामत तक कंधा तब्दील नहीं होगा, दाएं कंधे ही है। और फरमाया कि इस कान से लेकर ये कान और ये कंधा, 100 साल तेज रफ्तार घोड़ा एक स्पीड में दौड़े, इस कान और कंधे का फासला तय नहीं कर सकता। ये एक कंधा है एक फरिश्ते का, जिसने रब का अर्श उठाया हुआ है। तो अल्लाह अकबर, तुम्हारा रब कितना बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो हाजत रवा है, वो दाता दस्तगीर है, वो गौसे आदम है, वो बिगड़ियां बनाता है, कश्तियां पार लगाता है, बीमारों को शफा देता है, नंग ढंग को कपड़े देता है, भूखों को रोटी खिलाता है, तरीकियों में रास्ते देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी बादशाही है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह फरमाते हैं, बताओ मेरे अलावा दुनिया में कोई और हाकिम है? किसी की बादशाहत है? अल्लाह अकबर का नारा लगाया, 19 कोड़े लगे, दूसरे दिन फिर कोड़े लगे, तीसरे दिन फिर कोड़े मारे, चौथे दिन कोड़े मारने वाली जगह से निकाला और एक नौजवान शख्स को कोड़े मारने वाली जगह से हवालात में बंद करने ले जा रहे हैं और इमाम साहब को हवालात से कोड़े मारने वाली जगह पे ला रहे हैं। दोनों का दरमियान में टकराव हो गया। उस नौजवान ने इमाम के बाजू से पकड़ लिया, कहा इमाम साहब मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा बिल्कुल नहीं जानते? कहा नहीं जानता। कहा मैं इस इलाके का बड़ा अजीम वर नामवर डाकू, नाम अबुल खसीम है। कहा अच्छा। कहता इमाम साहब मैंने आपका रास्ता इसलिए रोका है, मैं डाकू हूं, मुख्तलिफ औकात में मेरी पुष्ट पर 18,000 कोड़े लग चुके हैं। कितने कोड़े खा लेने? 18,000। लेकिन अपने मौकफ से बाल नहीं आया। उधर कोड़ों की सजा होती है, पूरी करता हूं। बाहर जाता हूं, ना चोरी छोड़ता हूं, ना राजधानी छोड़ता हूं, ना डकैती छोड़ता हूं, ना कुछ भी नहीं छोड़ता। हर वो काम करता हूं जिसकी मुझे आदत है, फिर पकड़ा जाता हूं, फिर सजा होती है, फिर आ जाता हूं। ए इमाम, ये आना जाना लगा रहता है। मैंने शैतान के लिए 18,000 खा लिए हैं, तू अपने रहमान के लिए नहीं खा सकता? इस्तकामत का पहाड़ बन जा, कुछ नहीं होता। मैं शैतान के लिए खा सकता हूं, तो अपने रब रहमान के लिए नहीं खा सकता? उसके लिए जी। इमाम के बेटे अब्दुल्ला लिखते हैं, सारी जिंदगी जितनी देर मेरा बाप जिंदा रहा उस डाकू की मगफरत के लिए दुआ करता रहा। मुश्किल औकात आते हैं तहरीकों पर, मुल्कों पर, मिलतों पर, जमातों पर, लेकिन जो उस वक़्त मायूसियाँ नहीं फैलाते, मस्बत बात पर खड़े रहते हैं, अल्लाह इनसे ही काम लेता है। ये रोशनियाँ पैदा करते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, वक़्त गुजरा, मोतसम बिल्लाह भी फौत हो गया। बड़ा जुल्म है। मोतसम बिल्लावी की वफात के बाद जैसे वास्क बिल्ला इसने हकूमती भागदौड़ संभाली, मुमलकत को देखा, खिलाफत की कुर्सी पे आया, तो बड़े सारे शागिर्द इमाम के पास आ गए। बड़ी शागिर्दों की जमात थी। कहा ए इमाम साहब, उस्ताद जी, इस चिट पे ना थोड़ा सा लिख दो, इतनी चिट है, इस पे थोड़ा सा लिख दो। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा स्टेटस जो है हुकूमत का, रियासत का, कि कुरान को मखलूक कहा जा रहा है, फतवे दिए जा रहे हैं, कानून बनाया जा रहा है। आप सिर्फ इतना लिख दें कि इनके खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम चूल्हे उधेड़ के रख देंगे इन हुकूमतों की, लड़ेंगे, मरेंगे, जिहाद करेंगे, लेकिन इनको ये आइन पर चलने नहीं देंगे। इमाम मोहतरम ने कहा जाओ बेटो चले जाओ,
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा गो हुकूमतों से लड़ने से मना फरमाया। मैं आपको लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं खड़ा हूं जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने, मैं तुम्हें नहीं लड़ने दूंगा। और आज लड़ाया जा रहा है, मुल्क की इस्तेहकाम को फाड़ने की कोशिश की जा रही है, दोनों अतराफ से बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दुश्मन को रास्ते देने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह हम दुश्मन को शब खून नहीं मारने देंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, समझेंगे और ऐसी वीक पॉइंट रखने वाली पार्टियों को छोड़ेंगे। हम कुरान और हदीस को मानेंगे, हम अपने आप को तस्लीम करवाएंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बंदे हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, वास्क बिल्ला फौत हो गया, इमाम को 12 साल जेल में हो गए। कितने साल? जिहाद की इजाजत दी, डंडे सोटे की इजाजत नहीं दी। अकेले हुक्मरान के सामने हैं, कलमा हक कह रहे हैं दलील की कुव्वत के साथ। वास्क बिल्ला फौत हो गया, मतवक्कल बिल्ला आ गया। मतवक्कल बिल्ला ने सदारती खुतबा पढ़ा। सदारती खुतबा पढ़ने के बाद ऐलान कर दिया, लोगों, जो मौक़िफ़ इमाम अहमद बिन हंबल का है कि अल कुरान कलामुल्लाह, आज के बाद वही मौक़िफ़ हमारी सल्तनत और रियासत का है कि ये कुरान हमारे रब का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। चढ़ते सूरज की तरह ये रब का कलाम है, रोशनी की तरह ये कलाम है। मैं इसका ऐलान करता हूं, जो इसको मखलूक कहेगा चौकों चौराहों पे फांसियां लगा दो। मुआफी का ऐलान, इमाम को रिहाई मिल गई। बूढ़ी वालदा ने कहा, बेटा चलो मुझे इमाम के पास लेकर जाओ। नाम था जुबैदा। ये देखिए किसी ने नहर जुबैदा, हाँ, ये इसी बीबी के नाम से है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज की बहन है। नहर जुबैदा, ये जुबैदा नामी मोमिना खातून बेटे को साथ लिया, पहुंच गई इमाम के पास। रात की तारीकी थी। कहा, इमाम साहब, मैंने इसको पाला पोसा जवान किया, बड़े तो नहीं मानते थे, लेकिन मैंने इसको दर्स दे दे के समझाया है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये रब का कलाम है। इसको मैंने बड़ा समझाया है कि तेरा बाप भी झूठा है, तेरे भाई भी झूठे हैं, ये मखलूक नहीं हो सकता। इसको मैंने जवान किया। मैंने इसको कहा, जब तू इक़्तिदार में आए तू ऐलान करेगा कि कुरान हमारे रब का कलाम है। कभी अल्लाह के नाम को कोई दुनिया में गिरा सकता है? कहा, ये मेरे रब का कलाम है। कहा, 2 पेशकशें लेकर आई हूं, 2 अल्लाह के लिए मान जाना। पहली, ये शाही महल है, जौन सा महल आपको पसंद है हम उसकी अलाटमेंट आपके नाम करते हैं। किसको कह रही है? इमाम अहमद बिन हंबल को। जौन सा महल आपको चाहिए हम आपको देते हैं, इसमें जिंदगी गुजारें। कहा, बहन, हम इन दुनिया के महलों के लोग ही नहीं हैं, मोमिन इस दुनिया का बंदा ही नहीं है। ये तो 60-70 साल एक धचका है। मैं तो उन महलों के लिए दुनिया में जी रहा हूँ जिसकी 1 ईंट सोने और 1 चांदी की है, जिसका गारा कस्तूरी का है, जिसकी छत पर खड़ा होकर रब का दीदार करूँगा। मैं तो उस दिन का मुतलाशी हूँ। मैंने इन महलों को क्या करना है? मैं आपकी पेशकश नहीं मान सकता। जाओ ले जो अपनी पेशकश। कहती है, अल्लाह के लिए फिर दूसरी मान लो। यूं हाथ बांध के खड़ी है। कहा, बताइए। कहा, जितना मेरे खानदान ने आप पर जुल्म किया आप अपने रब के लिए माफ़ कर दो। कहा, जाओ बहन, जितना मेरे खानदान ने, तेरे खानदान ने मुझ पर जुल्म किया, मैंने अपने रब के नाम के लिए तुम्हें माफ़ किया। छोटा जुल्म है। जिन्होंने काम करने होते हैं वो दिलों में गंद नहीं पाल के फिरते होते, वो छोटी छोटी गलतियों पर सजाएं नहीं देते, वो किसी के जुर्म को देखकर उससे नफरत नहीं करते,
میرے واجب احترام بھائیوں معاف کیا، معاف کرنے کے بعد ایک دن اعلان ہو گیا لوگوں احمد بن حنبل سے فوت ہو گئے، جنازہ اٹھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کی میت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں یہ تاریخی دور ہے۔ فرمایا سب سے افضل جہاد فعلیکم بالجہاد وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ، جو سب سے افضل جہاد ہے وہ اسلامی ملکوں کی پہرے داری ہے۔ پاکستان عین اسلامی ملک ہے، انشاءاللہ اس کی پہرے داری بھی عین اسلام ہے۔ ہم نے کل بھی اس کی پہرے داری کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ فرمایا جب تم یہ کر لو پھر اگلا کام آسان ہو جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ الْأَسْقَلَانُ، پھر سب سے افضل پہرے داری رباط دنیا میں جو بہت بڑا اجر رکھے گا وہ فلسطین کے شہر الاسقلان کا ہوگا۔ اگر آپ کو کتاب مل جائے فتوح البلدان بلادری، اس کو آپ پڑھیں، اس کا نقشہ کھولیں، اس کے اندر ایک نقشہ ہے، اس نقشے کو پڑھیں جہاں ہمارا بیت المقدس جامع مسجد اقصیٰ ہے، اس سے مغرب کی طرف 66 کلومیٹر بالکل رملہ و غزہ کے بالکل سامنے الاسقلان کا شہر ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فرمایا اس کے لیے جو لڑے گا یہ سب سے عظیم جہاد ہوگا، اس کے اجر کا مقابلہ کوئی جہاد نہیں کرے گا۔ وہ ایشو بھی شروع ہے انشاءاللہ، گریٹر اسرائیل نہیں، آزاد ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی انشاءاللہ فلسطین قائم ہوگا، یہ نبیوں کی سرزمین سے قائم ہوگا۔ آپ نے فرمایا امام مہدی سے پہلے شام کی فتوحات شروع ہو جائیں گی، اللہ نے وہ فتوحات بھی آپ کو دکھا دی۔ پھر فرمایا اور فلسطین، ابھی ہمارا ایک وفد گیا ہے، خالد مشل سے دوحہ میں ملاقات تھی، تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے 15 منٹ ملاقات، آپ کے وفد سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، بہت تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئیں، اور 2 باتیں انہوں نے کہیں۔ خالد مشل نے کہتا ہے امیر صاحب کو کہنا، حافظ سعید صاحب کو، کہ ہمارا بہت بڑا تعاون کیا، لوگوں نے مدد بھی دی، پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا، ٹیبلٹ بھی دی، لیکن جو آپ نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا، جو رشتہ ہمارا آپ سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ یہ ایک تو بات کہنا، اور دوسرا ان کو کہنا کہ ہمارا جہاد رافضیت سے پاک ہو گیا ہے، ہمارا ہاتھ آپ سعودی عرب کے ہاتھ میں دے دو، یہ آپ کی جماعت کر سکتی ہے۔ امیر صاحب نے کام شروع کر دیا، بہت جلد انشاءاللہ حماس کا ہاتھ سعودیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر کافی سارے الحمدللہ وفود جا چکے ہیں، یہ 3را وفد جانے والا ہے، تو یہ دبئی کے ذریعے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں رافضیت سے پاک ہو گیا جہاد، یہ خالد مشل کہہ رہا ہے، ہمارا ہاتھ سعودیہ کے ہاتھ میں دے دو، یہ اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ کی جماعت کو بصیرت دی ہے، اور امیر صاحب کو پیغام دینا الحمدللہ وہ جہاد شروع ہے، اور انشاءاللہ یہودیت کے خاتمے تک اس کا اختتام ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کھڑے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں خلافت کی نعمت دے گا جو میرے محمد رسول اللہ کے عین نبوی منہج کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ اس دور کے بعد اللہ مسلمانوں کو عظیم خلافت کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ ایمان ہے نا؟ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ یہی تو ایمان ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، میرے نبی کی خلافت جو میرے منہج پر ہوگی اللہ وہ دے گا اس دنیا میں امت کو۔ اس دور کے بعد اللہ وہ خلافت امت مسلمہ کو دینے والا ہے، اور اس آنے والی خلافت کا بیس کیمپ پاکستان ہے انشاءاللہ۔ مایوسیاں نہ پھیلاؤ، اس پاکستان کے خلاف
डॉलरों में लिफाफे ले लेकर तुम ऊपर बैठ के मीडिया पर खबासते ना करो। यह मुल्क अजीम है। अभी हमारी रियासत ने तैयारा बनाया GF-31 थिंडर ब्लॉक 3 में, उसका रंग काला किया है, काले रंग का है। हिंदुस्तान हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन में गया है। जब पाकिस्तान से वजाहत ली जाए, जब 1964 में एक मुआहदा मौजूद है कि दुनिया में जितने तैयारे लड़ाका होंगे उनके रंग एक जैसे होंगे, फ्लैग अलग अलग होंगे, तो पाकिस्तान ने इसका रंग क्यों काला किया है? ये वजाहत लो, तुम्हारे बाप की जागीर है। पाकिस्तान की रियासत ने यूनाइटेड नेशन में तहरीरन वजाहत दी है। हमारे नबी कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गज़वा हिंद में काले घोड़े इस्तेमाल होंगे, तो हमने अपने घोड़े का रंग काला कर दिया, जो तुमने करना कर लो। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की रियासत को पता है कि गज़वा हिंद होने, बेचारे मौलवी को पता ही नहीं है। इन पार्टियों के हुक्मरानों को कोई पता नहीं है। खारजा पॉलिसी में फलस्तीन का उम्मत से रिश्ता क्या है, कुछ पता नहीं। इंशाल्लाह ये काले घोड़े चलेंगे। और अल्लाह ने असबाब पैदा करने हैं। 6 दिन के अंदर शाम फतह हुआ है। इंशाल्लाह ऐसा ही असबाब चलेगा इस मुल्क में, अल्लाह चलाएगा, उसके हाँ कोई देर नहीं है। लेकिन हमने कुरान और हदीस को छोड़ना नहीं है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, आपने जमीन पर उंगली रखी, आखिरी हदीस बात खत्म करते हैं। आपने फरमाया ये दुनिया का मशरक है, ये भी तिबरानी की रिवायत है। हमारे एक शेख, उन्होंने किताब लिखी जिहाद हिंद, एक मुबारक इलामी पेशीन गोई, सही सनद के साथ उसमें रवायात लेकर आए हैं। आपने जमीन पर उंगली रखी है और फरमाया ए मेरे जानिसार, ये दुनिया का मशरक है और मुझ मोहम्मद करीम को दुनिया की मशरक से ठंडी हवा आती है। ठंडी? कहने वाले ने कहा ए अल्लाह के नबी, हरम मक्की है जहां एक नमाज पढ़ो तो लाख का सवाब मिलता है। अल्लाह सबके नसीब में करे। पूरी जिंदगी बंदा नमाज पढ़े ना 50 साल, तो 90,000 नमाज बनती है 50 साल की, इतनी पढ़ सकता है। उधर एक पढ़े तो कितनी बनती है? 1 लाख। अल्लाह सबके नसीब में कर दे, असबाब पैदा कर दे। हरम मक्की भी है, उधर हरम मदनी है, मस्जिद नबवी, इधर मस्जिद अक्सा है। 3 जगह मुकद्दसात हैं। ये मशरक क्या है? यहाँ से आपको ठंडी हवा क्यों आती है? ये क्या मामला है मशरक से ठंडी हवा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबी, ये मशरक वो मशरक है जहाँ से इस्लामी और जिहादी लश्कर उठेंगे जो हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों जंजीरों में जकड़ कर हिंदुस्तान की फतह का ऐलान करेंगे। जब हिंद फतह हो जाएगा, मुत्तसिल बाद शाम के शहर दमिश्क में, ये दारुल हुकूमत है दमिश्क शाम का, इसकी जामिया मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। उनको नीचे उतारा जाएगा। नीचे उतर कर वो पहला काम करेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह एक है और मैं मोहम्मद करीम को आखिरी रसूल और अल्लाह का बंदा मानता हूँ, मैं उम्मती डिक्लेयर होता हूँ। फिर असर की नमाज पढ़ाएंगे, 2 बुजुर्गों को करीब करेंगे कि आपकी नज़र में कोई इस्लामी जिहादी लश्कर दुनिया में है? क्या पूछेंगे? इस्लामी और मुबारक हो आपको, इस्लामी और जिहादी लश्कर है दुनिया में कोई? वो बाबा जी बताएंगे बेटा दुनिया में 2 लश्कर हैं जो मेरे इल्म के मुताबिक इस्लामी और जिहादी हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे बताइए, कहेंगे एक मशरक में है और एक मगरब में। कहा कौन कौन है? कहा जो मगरब में है वो इमाम महदी का लश्कर है और जो मशरक में है वो फातिह हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान के फातिहीन का लश्कर है। आप दोनों को लेटर लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे जो उस वक़्त की भी पैगाम के जराए होंगे। फरमाया दोनों लश्कर मेरे साथ मिलो, मेरे मुकाबले पर दुनिया का करोसीन वार दज्जाल है, उसके साथ लड़ाई है, आप मेरे साथ मिलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दोनों लश्कर ईसा बिन मरियम के साथ मिल जाएंगे और दज्जाल को
60,000 यहूदी अस्फहान से मिल जाएंगे। ये मौजूदा जो ईरान है, यहां से 60,000 यहूदी पले पलाए ट्रेनिंग याफ्ता ये दज्जाल को मिल जाएंगे। मुकाबला शुरू हो जाएगा, जिहाद रोजोरों पर चलेगा। पहले दिन सालों के बराबर, 40वें रोज आखिरी लड़ाई इसराइल के शहर लुद में होगी। कहां होगी? इसराइल के शहर लुद में। इस वक्त वहां यहूदी लुद एयरपोर्ट बना रहे हैं कि हम अपने मसीहा दज्जाल को इस एयरपोर्ट से फरार करवा देंगे, भगा देंगे। लेकिन कायनात के इमाम मोहम्मद करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि इस लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चढ़ेंगे, दज्जाल सामने आ जाएगा। आप कहेंगे चल भाग भी जितना तो भाग सकता है, भाग नहीं पाएगा। अपने घोड़े की पेशानी और कमर पर पांव रखेंगे, एक ही वार के साथ दज्जाल के जिस्म के 2 फाट टुकड़े करेंगे, फिर नीचे छलांग लगाएंगे, सर के बल खड़े हो जाएंगे और कहेंगे दुनिया वालों, ये दुनिया में आखिरी दज्जाल था जिसका खात्मा मैंने कर दिया है। आज के बाद कोई दुनिया में दज्जाल नहीं आएगा, कोई दुनिया में दज्जाल पैदा नहीं हो सकेगा। खत्म हो गया दज्जाल। और इमाम कायनात मोहम्मद करीम ने फरमाया दुनिया में कोई गारे का बना कच्चा घर और कोई पक्की ईंट का बना पक्का घर नहीं रहेगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दाखिल नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया इस्लाम देखेगी। अल्लाह ताला सबको उनके हिस्से के मुताबिक अजर और जज़ा देगा। आज आप भी 9,000 शहीदों के वारिस हैं, अल्लाह के फजल से जमात रखते हैं। फैसलाबाद में जिम्मेदारी थी। आखिरी बात, शहादत की खबर आई, खारजा पॉलिसी में बड़ा प्रेशर था। हम तो हमेशा खारजा पॉलिसी के साथ चले हैं। फैक्स आई के फलां बिन फलां नौजवान, इसने 21 कुत्ते मारे हैं। सीनियर ने मुझे कहा कि इनसे पूछो कुत्ते की नस्ल, कोई मुकाम, बेटे की शहादत की खबर देनी है। तो उन्होंने लिखा मकाम कंदोज है, मरने वाले अमरीकी नस्ल के कुत्ते हैं। मुकाम कंदोज है और मरने वाले अमरीकी नस्ल के कुत्ते। गल समझ आ गई। शहादत की खबर वरसा को मस्जिद में दी। मैंने वालदा को बताया कि आपका बेटा कहाँ शहीद हुआ है। अमीर साहब के मुतल्लक उस माँ ने कहा मुझे कि मेरे बेटे का जनाजा फसई साहब पढ़ाएंगे। मैंने अमीर साहब से टाइम लेने की कोशिश की। अमीर साहब कहते हैं दुनिया में तूफान आ जाएगा, ये काम अभी नहीं चलेगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ नजर आ जाएगा दुनिया को। अभी हम पुलिसी के साथ चल रहे हैं। मैंने कहा जी आप नहीं पढ़ाना है। कहता फिर कश्मीर शो कर दो, इश्तिहार पे कश्मीर लिख दो। हमने कश्मीर लिखा कि इधर शहीद हुआ है। बहुत बड़ा जनाजा था। अमीर मोहतरम जनाजे से फारिग हुए। शहीद की वालदा ने चिट भेजी कि खुदा के लिए हाफिज सईद साहब को मेरे घर में ज़रूर लेकर आना। शहीद के घर की तरफ चल दिए। ये बाहर का दरवाज़ा है, मुत्तसिल फासले पर कमरे का दरवाज़ा, 5 फुट जगह, एक तरफ नलका और एक तरफ बाथरूम, गुजरने की जगह, 2 चारपाइयाँ एक सामने और एक साइड पर। और उसी कमरे के तीसरे कोने में आटे की, वो मट्टी की बनी आटे की जो होती थी वो, कुछ लकड़ियाँ, खाने पीने का सामान। सामने वाली चारपाई पे मोटी चादर का पर्दा करके अम्मा जी बैठी, कहती बेटा मेरे पास आ जाओ। अमीर साहब को इस चारपाई पे बिठाया। मैंने तारफ़ करो अमीर साहब ये शहीद की वालदा है। अमीर साहब ने नसीहत की बहन आपको मुबारक हो कि आपके बेटे ने अल्लाह के नाम के लिए जान कुर्बान की है। मैं आपको इसलिए मुबारक दे रहा हूँ वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, के शहीदों का इंतखाब तो रब करता है। यकीनन आपका बेटा रब का इंतखाब था। आपको मुबारक हो। 6-7 मिनट की गुफ्तगू करके खामोश हो गए। कहती अमीर साहब मैंने आपको मकसद के लिए बुलाया। बहन हुक्म करो। कहती अमीर साहब आपको मैंने गवाही के लिए बुलाया। कैसी गवाही? कहती अमीर साहब ये मेरा यतीम और इकलौता बेटा था। मेरे खामद का साया मेरे सर पर नहीं है, मेरा कोई बेटी बेटा नहीं है, यही मेरा बेटा था। आप गवाह रहना, जो कीमती दौलत दुनिया में मेरे पास थी वो मैंने अल्लाह के नाम के लिए कुर्बान कर दी है। ये कुर्बानियाँ हैं, ये कल भी थी, आज भी, और इंशाल्लाह ये क़यामत तक जारी
رہیں گی۔ آج فلسطین بھی لہو لہو ہے، اور آپ کی یہ تحریک اللہ کے فضل سے اس وقت بہت بڑا کام، سردی کے موسم میں بہت بڑے ان کے لیے ونٹر پیکج بستروں کے لیے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلی کھیپ دوحہ میں بھیج دی ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ تصویریں بھی آ رہی ہیں، مسلم میڈیکل مشن ہمارا کام کر رہا ہے وہاں پر۔ تو آپ نے بھی بھرپور ہمیشہ ان کو یاد رکھنا ہے، جیسے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، انشاءاللہ یہودیوں کی بربادی تک ہم نے فلسطین کو چلانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ رکھے ایمان کی سلامتی پر، جب بھی کبھی موت آئے اللہ میدان جہاد میں شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔